That's our hostel. Finally, you have to say goodbye to the view. Such a nice place to be in. Goa, we all talk about. And you can just hang out here alone. You don't have to come with friends. That's the best part. So that's our hostel. Finally, you have to say goodbye to the view. And that was the cafe. Our bike is fully loaded, so the trip starts finally. This was a really nice stay in hostel. बहुत अच्छा stay था hostel में. I made some really good friends. This was a really nice stay here. I never thought that it's gonna be this fun, but I really enjoyed it. पूरा 2 दिन गोकर्णा एक्सप्लोर किए, लोगों से मिले, खूब सारी बातें हुई, and it was so fun. We can do it again and again. Should do it again and again. There are so many beaches. कितने सारे trails हैं एक्सप्लोर करने के लिए. And friends I made here, very unexpected and very good friends. So I kind of remember these places, these routes, all the roads. I will come back here again for sure. There are many beaches out here. होता क्या है कि ऊपर गाड़ी लगाओ, पार्क करो, और ट्रेल्स होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, वहाँ से उतरो, वहीं पे ढेर सारे कैफ़ेज़ एंड देयर आर प्लेसेस टू स्टे. And I kind of miss this place. I don't want to leave. I want to stay here for a day, but I am on a timeline, so I cannot just stay here. Properly आएंगे बैंगलोर तो properly गोकर्णा में भी आकर रुकेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आराम से. And you can just hang out here alone. You don't have to come with friends. That's the best part. This was my first experience in hostel, and I would say I would recommend that you should do this. Whenever you get chance to do this, you should do this. I have walked this trail. इस वाले ट्रेल पे पैदल भी चले थे काफ़ी दूर, काफ़ी देर तक. एक बीच है ओम बीच, वहाँ जाता है ये रास्ता. I didn't vlog yesterday क्योंकि I was just not feeling to. I was taking a day off from everything that's going on in my life. And yesterday I met a person here, this place. People usually go on trails in these places. So today's destination is Goa, and Goa is around 130 kilometers from where I am. तो गोवा में भी मोस्ट प्रोबेबली हॉस्टल खोजने का कोशिश करेंगे. इफ़ आई गेट हॉस्टल में ही रुक जाएंगे. I know I am saying this again and again, but I felt so good these 2 days. I talked to many people from Bangalore, from Ranchi, from UP, and I made friends with them. How unknown people, just it's very different experience. Yeah. So we have exited the town. Gokarna is a very small town, but it's a very beautiful town. People are very friendly. There's a temple too. Temple name was Mahabaleshwar Temple. Yeah. So that's a famous temple, and वहाँ गए नहीं क्योंकि कोविड को लेके थोड़े से restrictions थे. So I chose not to. टेम्पल विजिट किए, बाहर से फ़ोटो खींच के घर भेज दिए, काफ़ी है उतना. और सुबह या वाज हैविंग अ लिटिल टूर ऑफ द टाउन. हाईवे, दिस ब्यूटीफुल हाईवे NH66 to Goa, and the roads are pretty good now. Wow. And
the weather is also so pleasant. I hope it doesn't rain. Everything else is just perfect. I am gonna miss these mountains. I am telling you, I'm gonna miss these. Rajdhani? No, it's not Rajdhani. Wow. So I stopped here. It was raining very heavily, and see the place. Goa is almost 80 kilometers or 70 kilometers from here. It's a very beautiful beach. There is a house up in the hill. There is a whole range of hill on my right side, and you can see the ocean on my left side. It's a very beautiful view. It was raining, so I had to change. रेनकोट पहने, रेनकोट अभी वापस रखे हैं, अब आगे जाना है. It was raining very heavily. It stopped. रेन में almost 20-30 kilometers चला है. It is better now. So again see you in motovlogging mode. And now I am entering Goa. So this is Goa. Oh my god, they didn't even stop me. Mumbai is 675, Panji is 94. So I entered Goa and Karnataka is way behind me right now. So yeah, welcome to Goa. I don't think so now I'm gonna face any problem ahead. Border जब भी cross करते हैं, there is a little bit of confusion that whether they will allow to enter or not. So we entered properly, now no problem. So welcome to Goa, NH66. What happens in Goa stays in Goa. जब से I've entered Goa, jungle got pretty intense. Forest area पूरा लग रहा है कि फिर से जंगल आ गए, केरला का जंगल टाइप्स. So it's pretty raw and it's pretty good. Goa is a nice place to be, but it's too crowded sometimes. See how foresty green it is looking. ऊपर से this monsoon has brought so many colors to places in south. I really loved this trip. This was the perfect time to go. If I go again, I'm gonna go out in monsoon. This time I will do it with a car. I will see how it is. See how natural it is, how raw it is. The roads are so good. When roads are good, you enjoy driving. You get everything in our country. Everything. What do you want? Hills, beaches, mountains, lakes, rivers, desert. Everything we have. Look at the beauty of Goa. We're still going by the coast, and we have the beaches on our left, and such a wonderful small houses. Cloudy mountains and a good road. I have to take a photo. This bridge moves when something big passes. Such a nice place to be in. Really beautiful. So we are in Ghat section. गोवा का पूरा क्या सही लगता है यहाँ बाइक चलाने में. तो गोवा इज़ 30 किलोमीटर्स, पणजी इज़ 50 किलोमीटर है यहाँ से पणजी. छोटा सा एक स्टेट है गोवा, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा. गोवा इज़ फेमस फॉर इस कैश्यू, जो कि छिलके वाला काजू बोला जाता है, जिसमें छिलका होता है उसको छुड़ा के खाना पड़ता है. उसके लिए फेमस है, स्वीट लगता है खाने में और थोड़ा सा जूसी रहता है देन द ड्राई वन. फिर यहाँ का कोकोनट बहुत फेमस है.
और यहाँ का 2 ड्रिंक बहुत फेमस है, फ़ेनी जो कि कैश्यू फ़ेनी और कोकोनट फ़ेनी है। लोग जनरली यहाँ वही ट्राई करते हैं। फूड, गोवन फूड कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है यहाँ पे। मीट बहुत यूज़ किया जाता है बर्गर्स वगैरह में, डिफरेंट एनिमल्स का, तो वो लोकल कुजीन है यहाँ पे। कोकोनट और क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ ग्रेवी में, कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। गोवन कुजीन बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, बट इट्स वर्थ ट्राइंग। अगर आप आ रहे हो तो यू कैन ट्राई दैट। सो वी आर क्रॉसिंग अ टाउन, एक छोटा सा टाउन है पणजी से जस्ट पहले। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मेन बीच एरिया है, जहाँ पे बागा बीच और बाकी सारे रॉक बीचेस हैं। तो उस एरिया में ही एक हॉस्टल है, हॉस्टल नहीं तो लोकेशन वहाँ का डाले हैं। अब आई विल गो एंड चेकअप कि दे हैव बेड्स अवेलेबल और नॉट, एंड देन विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं और एकदम जस्ट बगल में बागा बीच है, और कुछ ज़्यादा एक्सक्यूज़िट नहीं है करने के लिए उन सारे बीचेस में। सारा कनेक्टेड, यू कैन वॉक एंड गो थ्रू ऑल दोज बीचेस। ब्रिज जिसके नीचे चल रहे हैं हम लोग, फ्लाई ओवर, दिस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन जब लास्ट टाइम गोवा आए थे 2 साल पहले। और अभी ये वाला पूरा रूट पहले से ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो टाउन से, जो मेन बागा बीच है वहाँ से 30 किलोमीटर्स के अराउंड है, 30-35 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो दिस इज़ द वे टू गो एंड कम। तो ये जो ब्रिज बन रहा है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में आता है अपने कंट्री का, और जो कंपनी लिया है उसका नाम DBL है, स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है और अपने एरिया में भी काफ़ी काम कर रही है। तो ये वाला प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये 3 साल की 4 साल से लगातार चल ही रहा है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज़्यादा है कि ये कोरोना की वजह से इतना डिले हो गया। तो लास्ट टाइम भी आए थे तो इसके बारे में सर्च किए थे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ डबल ब्रिज बन जाएगा तो कितना सही और कितना सुंदर हो जाएगा। टाइम टेकन जो हो जाएगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। सो इट्स रियली नाइस टू सी प्लेसेस चेंजिंग सो फास्ट। सो आई होप ये वाला रोड जल्दी से ख़त्म हो जाए कि नेक्स्ट टाइम आए तो इस ट्रैफिक में और इस ब्रिज पर नहीं चलना पड़े। या सी द स्ट्रक्चर मैन। The beach area is 20 kilometers away and such a nice convertible car. पुराना कार लग रहा है बहुत, MD लिखा हुआ है, पता नहीं कितना सुंदर कार है। नाइस, शेवरलेट लिखा हुआ है ऊपर में। तो कलेक्टिबल्स में आता होगा आई गेस। So yeah, 16 more kilometers to go. This place has really changed. इतने complicated structure और bridges बन गए हैं, इतना नहीं था पहले, बहुत सिंपल सा लगता था और पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम। अब कितना सही हो गया। गोवा है जहाँ पे कसिनो अलाउड है, गैम्बलिंग अलाउड है जहाँ पे, एक्चुअली कसिनो तो गैम्बलिंग ही हुआ। गोवा we all talk about. So the hotel I'm looking for is 2 kilometers away and the time is 2:20. So finally I've reached the hotel and I have check-in already. This is the sitting area and this is my room, quite good and decent. And a decent, nice sitting area we have here. So it was a nice evening after all. अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और हमारा डिनर वहीं बागा बीच पे हुआ, एज यू नो, एंड वेदर इज़ सो प्लेजेंट, सो प्लेजेंट। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक सो दिख रहा है।
बट इट्स ड्रिजलिंग और बहुत बहुत प्लीजेंट हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा। गोवा का टेम्परेचर थोड़ा ह्यूमिड और सुबह सुबह थोड़ा गर्म तो था, बट अभी इट्स बेटर। सो वी ऑर्डर्ड रेड स्नाइपर फिश विच इज़ फेमस अराउंड दिस एरिया एंड इट्स अ वेरी गुड फिश टू ईट। और उसके साथ जो उसका ग्रेवी था वो गोवन स्टाइल में बना हुआ था, कोकोनट का यूज़ करते हैं ये लोग, और उस ग्रेवी का भी एक नाम होता है। स्पाइसेस बहुत लाइट रहते हैं उसमें, विथ राइस यहाँ पे लोग खाते हैं उस फिश को, और साथ में फ्राइड रेड स्नैपर। तो उसका जो टेस्ट था फिश का, बहुत चिकन टाइप्स, उसका जो मीट का टेक्सचर था वो बहुत चिकन फिश से ही रिजेंबल कर रहा था, बहुत चिकन टाइप्स था, और टेस्ट बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी गुड फिश। आई कैन हैव दैट अगेन वेन एवर एनी वन विल गिव मी, आई विल हैव इट, नो इशू इन दैट। सो साथ में एक लोकल डिज़र्ट है गोवा का, वो मंगाए थे, कोकोनट से बना हुआ रहता है, वो खाए। हमारा जो आज का रूट था वो आपको मैप्स में दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। तो दिस इज़ आवर इंडियन मैप, और हम लोग अभी यहाँ पे थे गोकर्णा में, और अभी हम लोग गोकर्णा से चल के सुबह 160 किलोमीटर्स पार करते करते, वास्को डिगामा पार करते करते, पणजी के थोड़ा आगे गोवा जो बागा बीच है वहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पणजी लिखा हुआ है, और कल यहाँ से कहीं, यहाँ मुंबई है, इसके बीच में यहाँ कहीं रुकेंगे। तो कल का जो प्लान है इट्स वेरी अनश्योर, आई हैवंट डिसाइडेड वेयर आई एम गोना स्टॉप। सो विल वेक अप अर्ली, आई एम टायर्ड। 2 दिन से ठीक से नींद नहीं आई। हमारे नए नए फ्रेंड्स बने थे, तो 2 दिन 3 बजे 4 बजे 2 बजे ऐसे ही सोए हैं। एक भैया है हमारे, सुमित भैया, जो कि गोड्डा से ही है, मेरे ही जहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहीं पे वो रहता है, गोड्डा में। तो वो यहीं पे थे गोवा में, तो वो भी मिलने आए थे, तो मिले, बातचीत हुई, उन्हीं के साथ फिर होटल वापस आए, और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बातें हुई, एंड देन आई केम बैक टू माई प्लेस। सो आई वुड एंड विद दिस। आज का दिन सही गया, बहुत शॉर्ट और प्लीजेंट राइड था। सो विल मीट।